शुरू करें। क्या आप एलाइड हेल्थ साइंसेज, अप्लाइड साइंसेज, सोशल साइंसेज या मैनेजमेंट साइंसेज में करियर बनाना चाहते हैं? देन नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर is your destination. फातिमा मेमोरियल अस्पताल के 46 साल तजुर्बे पर मबनी नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ क्लिनिकल बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम्स में दाखिले जारी हैं। डॉक्टर फिजिकल थेरेपी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, इमरजेंसी एंड ICU सर्विसेज, साइकोलॉजी, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी और न्यूट्रिशनल साइंसेज। नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में मास्टर्स इन फूड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, MPhil बायोकेमिस्ट्री, MPhil फिजियोलॉजी और MBA प्रोग्राम के दाखिले भी जारी हैं। 100% तक स्कॉलरशिप्स हासिल करने का मौका हाथ से ना जाने दें। Call now 0320-4455-148 or visit www.niu.edu.pk. Nur International University, a project of Fatima Memorial System, Lahore. Assalamu alaikum and a very good morning to everyone. Welcome everyone to our virtual Fireside Chat from Lahore. A journey from Syracuse University, United States to the Nur International University in Pakistan. I am thrilled to have two distinguished people with us today, Mr. Salem Reham, who shall be moderating today's event, along a very special guest from Jazz Lahore. Allow me to formally start by introducing our moderators for today. Mr. Salem Reham is a remarkable engineer and entrepreneur with over 17 years of experience in various fields, spanning 3 continents. He has a Bachelor's of Science degree in Industrial Engineering and Operations Management from Purdue University in the United States. He also has an MBA from INSEAD in France and Singapore. His expertise span across the business, logistics management, and information technology sectors. He has worked with multiple well-known organizations such as Applied Materials, Lowe's, and UPS. Mr. Rahman is fluent in multiple languages, including English, Urdu, Punjabi, and French. He currently serves on the board of several organizations, such as Fatima Memorial Hospital, Nur Foundation, Nur Enterprises, Nur International University, Karim Nasa Hospital, and the LUMS Center for Entrepreneurship. He has been on the board of EMCO Industries since 2010. Welcome to the show, sir. Thank you. Our honored guest today is the head of the Customer Experience Department at Jazz. He has completed his master's in computer engineering from the Syracuse University in the United States, followed by a master's in data analysis and psychology in Pakistan. Ahmad has an extensive industry experience in leadership and training, strategic business development, marketing, and sales, international relations, and stakeholder collaboration as well. He has worked closely with USAID, GIZ, and British High Commission in imparting trainings on the leadership management and skill enhancement. I welcome you, sir. It's a pleasure. I'm excited to hear about Ahmad's journey from attaining education in the United States to Pakistan. So without further ado, let's begin our discussion. Thank you very much, Dr. Anam, for the kind introductions. Ahmad, thank you again for joining us. We're deeply honored कि आपने time निकाला हमारे लिए
It's great to not only have you on the show, but आपका experience जो था, we want to talk about that. आज जो हमें लोग join कर रहे हैं और जो बाद में इसको सुनेंगे, those are people जो कि either prospective students हैं, current students हैं, कुछ हमारे alumni हैं, जो कि हमारा ख्याल है benefit कर सकते हैं आपके experience से, not only आपका educational experience, but आपका life experience, which brings us back to today. जो आप हमारे सामने बैठे हैं, उनकी हर किसी की अपनी स्टोरी होती है और हम आपकी स्टोरी समझना चाह रहे हैं. So let me dive straight in to a few of the kind of questions and help our viewers understand who you are today sitting in front of us. Syracuse University के बारे में बताइए, अहमद. आप Syracuse गए for an educational degree. Then you came back. How do you find Syracuse University and your education in the United States? हाँ जी, well, सबसे पहले जी बहुत शुक्रिया सालम साहब and Dr. Anam. It's actually a pleasure. It's an honor के पाकिस्तान में जी जब we connect to people from different spheres और connectivity का ये modality हो learning का, तो it's just a different ball game. आपका जो सवाल है सर, interestingly, आरिफ गफूर साहब को पता नहीं आप जानते हैं या नहीं, वो पर्डू यूनिवर्सिटी में होते थे. जाना मैंने वैसे पर्डू यूनिवर्सिटी में भी मैंने अप्लाई किया हुआ था, बट मेरे दोनों जो पेरेंट्स हैं वो सिरक्यूज यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे. तो आई ग्रू अप इन सिरक्यूज एज वेल. सो जब मेरे वालिद साहब मास्टर्स कर रहे थे, मेरी वालदा ने भी वहां से किया, both are from the educational sector. तो Syracuse was just another easy step as compared to the others. सर्दी बहुत थी. It's a great institute. I highly recommend it to a lot of people. Interestingly, जब लोग अमेरिका के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको कुछ यूनिवर्सिटीज का पता होता है, राइट? और पर्डू हो गया, सिरक्यूज हो गया, मॉन्टाना स्टेट यूनिवर्सिटी होगी, आपके बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं कैलिफोर्निया में भी, इनको लोगों को नहीं पता. अब मेरा जो छोटा भाई है, ही इज पल्मोनोलॉजिस्ट, तो उसने जो है ना जी नेब्रास्का, यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का लिंकन से शुरू किया. तो बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं. सिरक्यूज एक्सपेंसिव था, बट इट हैड अ ग्रेट इंजीनियरिंग प्रोग्राम. एंड द अदर ग्रेट थिंग अबाउट सिरक्यूज इज उसका एक मैक्सवेल स्कूल है कम्युनिकेशन का, व्हिच इज वन ऑफ द बेस्ट in the world in terms of this MBA उसका, BBA उसका, public relations. So बहुत कुछ सीखे Syracuse से जी. बहुत सारे पाकिस्तानी भी आते हैं. It was just an amazing. और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि जी मेरी कोई काविश नहीं थी, इसमें अल्लाह सुब्हाना व तआला का करम था कि हम जैसे जो है लोग, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो पाकिस्तान से बाहर जाके चीज़ें सीखते हैं और पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट भी करते हैं. माशाल्लाह, that's good to hear. और हम बहुत खुश हैं कि आपने एक तो उधर रहते हुए भी, you said you grew up in Syracuse. मेरा एक ही I guess visit हुआ है to Syracuse University campus. वो भी एक storm आ गया था. I was on a road trip. तो अपस्टेट न्यूयॉर्क में जाते जाते I had to take a stop and मेरा एक दोस्त था, like a much younger to me, family friend, उसके पास then I ended up staying the afternoon. फिर हमने बाकी अपनी जर्नी कंटिन्यू की. But other than that, मुझे बताइए कि आपका जो एजुकेशनल एक्सपीरियंस है अमेरिका का, आपको NIU और पाकिस्तान कैसा लग रहा है आपकी इस वापसी के बाद? अगर कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करें एजुकेशनल एक्सपीरियंस उधर, एजुकेशनल एक्सपीरियंस इधर, हेल्प अस अंडरस्टैंड कि क्या कपाहते हैं, क्या पॉजिटिव्स हैं, नेगेटिव्स हैं, if you were able to do that comparison for us. जी जी श्योर. ये नहीं कि आप सामने बैठे तो मैं आपकी यूनिवर्सिटी की तारीफ कर रहा हूँ. देखें, मैं जब पाकिस्तान से वापस आया तो आई एम पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर. एक मुझे मेंटर्स मिले और मेंटर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी इंसान की ग्रूमिंग के लिए और उसकी एनहांसमेंट के लिए. तो मुझे एक साहब मिले, मंजर जैदी साहब, उजवा मंजर और भी इस तरह के लोग, जिन्होंने कहा कि जी आप technocrat हैं, but you can go into the learning and development. So I started also being a trainer and a facilitator, and I started doing trainings for your agencies. National Police Academy हो गया, आपके excise and taxation पे larger projects मिले GIC से. तो मैंने ये गवर्नमेंट कॉलेज का मैं खुद पढ़ा हूँ. तो NIU की एक क्वालिटी है जो यूनिक थी. मैंने सबसे पहले जी अच्छा, सो ट्रेनिंग में जब मैं आया तो मुझे ये ख्याल आया कि साइकोलॉजिकली I need to improve my skills, right? There's a lot of people in front of me जिनके psychological issues and depression, anxiety है, और since I do leadership trainings, तो ये चीजें बहुत बार आई हैं. तो I chose to move forward with NIU. पहला मेरा जो experience था वो आप लोगों ने एक डॉक्टर दहीन दीन
जो मेरी फैमिली थेरेपिस्ट की कोर्सेज वो करवाती है 1 साल की, एंड आई फेल इन लव विद NIU. आई मीन जो डॉक्टर दीन है, शी इज ऑल्सो अ फॉरेन क्वालिफाइड पर्सन. उन्होंने जिस तरह मुझे लेके चली हैं फ्रॉम बेसिक्स टू implementation, that's when I signed off and I said NIU is the best place to go for professionals. Unfortunately मैंने NIU को as a typical student नहीं दिया कि बैचलर्स के बाद कैसे होता है, तो वो I cannot comment, but as a professional who wants to go back into the corporate sector for very practical skills, I think NIU is the best. Specifically in allied sciences उसकी, and this is very true. डॉक्टर साहब एक और मैं आपको बताता हूँ कि मैं CBT करता हूँ. There's a therapy called CBTs in clinical psychology. मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ NIU का, और आपने एक टीचर रखे हैं आयशा शेख. जब वो आई, I don't know her personally, उन्होंने कहा कि जी मैंने अभी बेक इंस्टीट्यूट यूपेन से ग्रेजुएशन किए, तो दैट वाज जस्ट अ वाव फैक्टर. फिर आपके पास डॉक्टर समरीन है, डॉक्टर नुमाना है. डॉक्टर नुमाना हमारी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है. अगेन NIU ने एक और काम बहुत अच्छा किया, जो आई थिंक UMT गवर्नमेंट कॉलेज, यहाँ पे भी मेरे एडमिशन हुए थे, मैंने वहाँ पे चूज नहीं किया. उसकी वजह ये आपकी जो फैकल्टी है ना, वो बड़ी प्रैक्टिकल फैकल्टी है. दीज आर सीजन प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट जिनका 20 years का एक्सपीरियंस है. डॉक्टर राणा साहब हो गए जो हमें पढ़ाते हैं. Very, and nothing against other universities, I'm just doing an apples to apples comparison. I would rather like to be taught by PhD psychologists जिनका already experience भी practical है in these practical fields, right? तो NIU is the best place to go. I think आपने modalities भी सही रखी हैं, teachers भी सही रखे हैं, जो process flow है वो exceptional है. I'm really enjoying my experience at NIU. Thank you again for your very kind words, and it's heartening to know कि आपकी feedback इतनी positive है faculty के बारे में. Alhamdulillah, we pride ourselves in imparting professional education. कल ही पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन का एक वाइस चांसलर का फोरम था, so I was bridging both sides, the academia as well as the industry. और उसमें एक ये बहुत बड़ा गैप जो आता है, which I feel कि हेल्थ एजुकेशन इन पर्टिकुलर पाकिस्तान काफ़ी हद तक ओवरकम कर लेता है. जो कॉन्सेप्ट ऑफ हमारे हाउस जॉब्स हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर हैप्पी टू से दैट इन मोस्ट ऑफ द डिसिप्लिन्स जो कि हम इम्पार्ट करते हैं at NIU, हम ऑफर करते हैं वेरी लार्ज नंबर ऑफ प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़, आइदर इन आवर ओन सिस्टम जो हमारे एफिलिएटेड हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं, या थ्रू MOUs. अल्हम्दुलिल्लाह लॉ चेंबर के साथ हमारा है, चुताई लैब्स के साथ है, एवरकेयर हॉस्पिटल के साथ है. सो वी आर प्राउड टू से कि हम उसके थ्रू एक जो प्रैक्टिकल एलिमेंट अक्सर मिसिंग होता है फॉर स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट कर रहे होते हैं, हु आर लुकिंग टू एंटर द प्रोफेशनल वर्ल्ड, दे आर नॉट फुली इक्विप्ड. सो वी आर हैप्पी टू से कि हम उनको इक्विप करते हैं टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी एंड really get them ready for entering professional life. Ahmad, let me just ask you a quick follow-up question. In जिस तरह से आपने कुछ बताया कि NIU क्या करती है, how do you think NIU is responding and equipping our students towards the trends and developments in higher education globally? चाहे आपके एरिया में, चाहे other areas, anything that stands out in your mind that we may be doing better than others or most? Oh, जी, absolutely. Just to build on what you said, I think कि जी इसके 3 components होते हैं. एक तो ये है कि vision of any institute, दूसरा ये है कि आप टीचर्स को कैसे लेके आते हैं, और तीसरा ये है कि आप उन स्टूडेंट्स को मॉनिटर कैसे करते हैं. अब मैं आपको रिसेंटली एग्जांपल बताता हूँ. डॉक्टर नुमाना ने, जो हमारे सीनियर कॉलीग्स हैं या हमारे जो क्लास फेलोज हैं, उनको फातिमा मेमोरियल और आपका एक MOU है मेयो के साथ, तो वो क्लिनिकल असेसमेंट्स और वहाँ पे बैठते हैं, और फिर डॉक्टर नुमाना उनको पूछती हैं कि अच्छा जी आप प्रेजेंट करें, क्या क्या आपके पास पेशेंट्स आए थे, क्यों आए थे, किस तरह के आए थे, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चन आंसरिंग टू होन एंड बेटर इंप्रूव दोस स्किल्स. चीज मुझे बहुत कमाल की लगी है, राइट. तो एक तो होता है ना कि आपने MOUs क्रिएट कर दिए, बच्चे चले भी गए, बट उसके बाद फॉलो अप्स नहीं होते, आपने सीखा क्या. दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है जी, वो ये कि आपने जो फैकल्टी रखी हुई ना, लाइक एग्जांपल देता हूँ डॉक्टर आयशा का, उन्होंने खुद कहा कि जी मैं PhD करने गई थी फ्रॉम यूनिवर्सिटी पेंसिल्वेनिया, ये मेरा कोर फीचर सेट्स है, और वो हमें इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस भी बताती हैं, हमें इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स भी बताती हैं, और जो पाकिस्तान में गैप्स हैं वो भी आइडेंटिफाई करते हैं. तो आई थिंक NIU के एक प्लेसमेंट, बिकॉज यू आर ऑलरेडी हैविंग वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट्स इन पाकिस्तान, फातिमा मेमोरियल सिस्टम भी है, तो आई थिंक दैट रियली हेल्प्स योर अलाइड हेल्थ साइंसेज डिपार्टमेंट ग्रो एक्सपोनेंशियली.
राइट क्योंकि जितने भी मेरे पास स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आपके साथ इंटर्नशिप किया है वो क्वालिटी ऑफ पेशेंट्स हैं, क्वांटिटी ऑफ द पेशेंट्स हैं, वो 360 डिग्री फेज है, वो बल्कि टीचर्स भी बता रहे होते हैं, डॉक्टर राणा साहब भी बता रहे होते हैं कि नहीं जी अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आपने पेशेंट से बात कैसे की, अच्छा जी आपने फॉर्मा कैसे बढ़ा। तो आई थिंक NIU की ये प्रैक्टिकलिटी जो है ना कि वो फॉर्म्स को भी देख रहे हैं कि अच्छा आप पेशेंट से मिले आप फॉर्म्स भी दिखाएं। तो आई रियली एंजॉय दैट फीडबैक मैकेनिज्म। और मुझे फिर सिरक्यूज याद आता है कि जब आप प्रैक्टिकलिटीज में आते हैं तो यू रियली नीड टीचर्स टू असेस यू ऑन द वर्क एंड द रिस्पॉन्स मैकेनिज्म्स एज वेल। थैंक यू अगेन अहमद। आपने जो आई थिंक कुछ बातें की, आई थिंक 360 डिग्रीज वाला फीडबैक, द मॉनिटरिंग ऑफ द स्टूडेंट्स, देखिए एट द एंड ऑफ द डे हमारी जिम्मेदारी है कि of course we impart the best of academic education while at the same time guiding them. They are young minds, right minds जो कि अभी further उनको हमने develop करना है. So again I think thank you for your kind words. ये बताइए कि based on जिस तरह का आप काम करते हैं and माशाल्लाह you've done graduate degree as well. How do you feel we can build research which is meaningful and perhaps use and leverage international partnerships, collaborations, either locally or internationally, to improve the quality of research which may be happening, for example, in your field, and to make sure कि हमारे students जो हैं, या even those who graduated can consider coming back. Professor Namana ने, for example, postgraduate diploma शुरू किए हैं for early career, mid-career professionals, even late career professionals, to help them come back up to speed on things that they may be kind of missing with regards to their skill set. उसके बारे में आपके ज़हन में कोई any thoughts that come to mind on how we can leverage international collaborations or build up the quality of research? जी बिल्कुल आपने सही बात की। अच्छा एज अ साइकोलॉजिस्ट और अ स्टूडेंट ऑफ NIU आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल एंगल, नॉट फ्रॉम एन इंजीनियरिंग या फ्रॉम अनदर वन, स्पेसिफिकली टू अलाइड हेल्थ साइंसेज। जो आपके इंटरनेशनल टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल हैप्पीनेस है, कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं, फैमिली थेरेपीज हैं, दीज आर वेरी प्रैक्टिकल एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। तो आई थिंक NIU का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि अवेयरनेस क्रिएट करना। लाइक मैं जब निकलता हूँ मार्केट में तो 85% ऑफ लोग अपने फैमिली जो सिस्टम है उसके ऊपर पुश नहीं है। वो कोई प्रॉब्लम होती है, कोई बच्चे की वजह से, कोई बेगम की वजह से, फाइनेंशियल्स की वजह से, उनको ये नहीं पता कि यू कैन ऑल्सो गो टू NIU एंड यू कैन ऑल्सो गेट थेरेपी। अब ये जो अवेयरनेस क्रिएशन है ना, ये करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि मुझे ये पता लगा कि NIU में भी आपके पास थेरेपी सेशंस हैं, आपकी ओपन क्लिनिक्स हैं, बट हमारे जो ओवरऑल अब स्टूडेंट्स हैं O लेवल्स देते हैं, A लेवल्स देते हैं, स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। अभी O लेवल्स हुए, मेरी बेटी ने भी दिया, उसके फ्रेंड्स ने भी दिया, एंड दे वर जस्ट स्ट्रेस्ड। अब दे डोंट नो दैट दे कैन गो टू NIU, talk to a counselor and get that coping mechanism in place। तो एक तो ये गैप है। अच्छा दूसरा बॉस ये है कि डॉक्टर नमाना ने हमें APA सिखाया, एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन फ्रेमवर्क्स जो है, अब उसमें गैप्स भी हैं, राइट, कि हमारी एथिक्स वैल्यूज क्या है, मॉरल वैल्यूज क्या हैं, फ्रेमवर्क्स क्या हैं, किस तरह के हम सवाल पूछ सकते हैं। तो गैप्स तो आइडेंटिफाइड हैं, बट आई थिंक वी जस्ट नीड टू बिल्ड इट। द बेस्ट पार्ट आई लाइक अबाउट NIU इज कि सालम से मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ कि मैंने आपके 2-3 मैनेजमेंट लोगों को वैसे लिंक्डइन के ऊपर connect किया कि जी आई एम अ सीजन्ड प्रोफेशनल एंड आई थिंक वी कैन एक्चुअली क्रिएट सिनर्जीज। मुझे इमीडिएटली 2-3 लोगों को कॉल आई, आपकी भी आई, कि लेट्स एक्चुअली हैव अ productive discussion. I don't see that happening in Pakistan. I'm just so delighted that we have visionaries like you and other people at NIU who believe in this concept. I think frameworks होने चाहिए जी, research होनी चाहिए। आपके पास teachers हैं, डॉक्टर राणा साहब हैं, उन्होंने PhD happiness में की हुई, another thing that we can do on. So I think NIU is already in that framework. मुझे पता लगता रहता है कि already आपके वो MOUs sign off हो रहे हैं, कुछ चीजें आ भी रही हैं, right? So I think वो already आप productive lines में चल रहे हैं। I think the more so effect, Salem Saab, is the awareness that we need to create around it. Thank you again. Thank you for sharing those insights. आपने बिल्कुल सही बात किया। I like the word delight. I think it's a lovely word. It's a delightful word. और अगर हम इसको inculcate कर सकें in our students, the feeling of delight, happiness की आपने बात की. We had a session with Naeem Zamindar, a similar session
and of course he spoke about happiness, and he runs workshops on that as well. And if I remember correctly, what used to be MobiLink, now Jazz, he was an instrumental part of the Jazz original team. Anyway, we may be digressing. ये बताइए कि आपका जो particular background है, Ahmed, I think that would be of interest to our students, because a lot of the conversations जो हम करते हैं with professionals like yourselves, जो कि माशाल्लाह again हमारे सामने बैठे हैं, उनकी background immediately evident नहीं होती unless कि आप you scrape the surface a little bit. आपने अपनी engineering के बाद, of course that's my first love, engineering, आपने choose किया to really pivot and go into psychology, and then use psychology as your calling, which continues to be there today, and now we went to the corporate world as well. It's important, we always tell our students कि pigeonhole अपने आप को ना करें, think wide, think broad. अगर कोई opportunity मिलती है जो कि आप encapsulate कर सकते हैं, उसको ज़रूर करें. आप इसके बारे में कोई हमें आगाह कीजिए कि how did this pivot get created, what kind of drove you to make this happen, and how were you able to make this happen? Sir, excellent point. मैं believe ये करता हूँ sir कि mentorship and having people जो आपको guide कर सकें. आपने नेम जिम्मेदार साहब की example दी, वो he's one of my mentors. I know him very well. We used to work at Fatin together. So सबसे पहले वो ना green drink लेके आते थे, तो हमने पूछा सर ये क्या है, तो he used to say कि have you ever detoxed yourself? ये detoxing liquid है, वो पानी में अंदर वो डाल देते हैं. And we started learning कि जी yoga therapy क्या होती है, चीजें क्या होती हैं. तो नेम साहब वहां उस ट्रैक पे लेके आए to detox your body, right? I met Dr. Samreen many years ago, जो आपकी faculty member है, on a seminar, and she presented and she really coached me, so she became my mentor. फिर उसके बाद सर मैंने 1 साल की family therapy की आप लोगों के साथ, तो उसके बाद सर मुझे डॉक्टर नुमाना मिली. इंटरेस्टिंगली सर डॉक्टर नुमाना खुद एक स्टूडेंट थी उस क्लास में, एंड आई जस्ट फेल इन लव विद द क्वालिटी ऑफ द टीचर्स. मुझे बल्कि डॉक्टर समरीन बार बार कहती रही लाइफ में, एंड दिस इज ओवर 4-5 years, इट जस्ट डिडंट हैपन, राइट, कि अहमद आप ग्रो कर सकते हो, आप साइकोलॉजी में जरूर जाएं. तो जब मुझे पता लगा वो NIU में गई, डॉक्टर नुमाना भी यहाँ पे आ गई, तो आई जस्ट सेड कि दिस इज जस्ट द राइट प्लेस टू बी. सो mentorship, sir, is really the key. That will really transform a lot of students. और वो ये पाकिस्तान में नहीं है, वो गाइडेंस के लिए किसी सीनियर के पास नहीं जाते, वो लोगों के पास नहीं जाते जिसका बहुत बड़ा अलमिया है, क्योंकि सारी चीजें तो आप खुद से सीख नहीं सकते, कुछ सिखाने वाले भी मिलने चाहिए, स्पेसिफिकली इन योर करियर वर्ल्ड. मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूँ सर, कि क्लिनिकल साइकोलॉजी में आपके पास बहुत सारे थेरेपीज हैं, CBT है, आपके पास ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, बिहेवियरलिज्म है. हाउ डज अ स्टूडेंट मेक दैट डेफिनेशन? एंड आई थिंक NIU आपकी एक तो ओपननेस क्रिएट करता है, और दूसरा जिसमें आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं आपको टीचर्स भी मिलते हैं, तो which is very unlike other institutes in Pakistan, right? पता नहीं आपने कोई एल्गोरिथम बहुत जबरदस्त बनाया हुआ है कि आपने PhD हैप्पीनेस के लोगों को भी उठा लिया, आपने CBT के भी एक्सपर्ट्स डाल दिए हैं, but I think there's a magic pill that you've played, right? Because we have that. अब कुछ स्टूडेंट्स हमारे NIU में कहते हैं कि जी हमें जो है ना चिल्ड्रन साइकोलॉजी के ऊपर फोकस करना है, उसके भी आपके पास टीचर्स अलग हैं. तो आई थिंक ये जो, एंड आई थिंक इट्स द रीजन बिकॉज वी हैव पीपल लाइक यू रनिंग द शो, जिनको पता है कि जब स्टूडेंट्स आते हैं एक एजुकेशनल बैकग्राउंड में, तो उनको ये 5-6 चीजें आती हैं. लाइक सिरक्यूज या पडू की क्वालिटी ये भी थी ना सर, कि 2 साल तक तो इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड होती है, फिर वो जो इंक्लिनेशन होती है टुवर्ड्स केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर्स, वो टीचर्स भी बिल्ड करते हैं. बिल्कुल ठीक है. Thank you. I think again very well said. जो आपने mentorship की बात की अहमद, वो वाकई हमारे यहाँ पाकिस्तान में in particular बहुत हद तक मिसिंग है. I think मुझे अभी भी याद है कि पर्डू में भी जब हम अंडरग्रेड, बिल्कुल आपने सही कहा, जब जनरल इंजीनियरिंग हम पढ़े थे for the first 2 years, तो I had a very good advisor जो आज तक मुझे याद रखते हैं. They were
they were in academics, teaching high level courses, लेकिन ज़्यादा उनकी administration and guidance, counseling related activities थी. That's something, of course, we wish to aspire towards at NIU. हमारा education system is not as broad as the US system is. वहाँ तो आप undeclared major for semesters on end कर सकते हैं. बल्कि कल PHEC वाले सेमिनार में जो चेयरमैन साहब बैठे हुए थे, मैंने उनको ये कहा कि जी young minds हम उनको जरूर गाइड कर सकते हैं, लेकिन often perhaps वो तैयार नहीं होते to go into certain direction. Yeah, if they go down a certain path, they may wish to come out and go another path, जो कि बाद में opportunities जिस तरह आपने choose की, you have the luxury of time. However, let's face it, the US education system also is very heavy into student loans, opportunities होती हैं यहाँ पे. I think because ROI वाला component बहुत strong होता है, तो sometimes the luxury of financial outlay is not available for you to experiment as much. लेकिन अगर हम किसी तरह students को उनके passions और उनके जो needs है उनको align करें, तो nothing better than it, because this is going to be the rest of your life, the career that you choose, and most likely आपकी जो education है उसका एक बहुत बड़ा component होगा which will build up on that career. मैं ज़रूर encourage करूँगा to our live listeners कि we'll be switching to Q&A. We've gone on for about 25 minutes, which is typically the time जब we start asking questions. मैं सिर्फ अहमद अपनी तरफ से एक आखिरी सवाल, and then if there's, depending on questions, we can continue a few minutes more. मुझे बताइए कि आपने जो ट्रेनिंग वाला कंपोनेंट एक इख्तियार किया और आपने USAID, ब्रिटिश हाई कमीशन वगैरह के साथ भी काम किया, उसके बारे में बताइए. आई थिंक इट्स एन इंटरेस्टिंग ट्विस्ट अगेन आपके करियर में जो आपने इनके साथ ट्रेनिंग वाली साइड पे गए. how did that come about and what did you learn, because आप खुद भी बहुत सीखते हैं during these training initiatives. जी सालम साहब, जिस तरह आपने अभी 5-6 मिनट पहले भी वो हमें गाइडेंस दी कि हमारे पास जो चीज़ है जिंदगी की, उसमें बहुत सारे स्किल्स होने चाहिए. आप दुकान पे भी जाते हैं तो वो एक दुकान एक चीज़ नहीं बेचती. इसी तरह इंसान जो है ना, वो अपनी दुकान जब बनाता है तो वो एक स्किल जो है वो बेच नहीं सकता. ठीक है, तो मैंने ये ज़िंदगी में, क्योंकि मेरे वालिद साहब भी एजुकेशन बैकग्राउंड से थे, ही वाज अ टीचर एट गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, मेरी वालदा लाहौर कॉलेज में पढ़ाती थी, तो एक चीज़ मैंने शायद ज़िंदगी में सीख ली कि आई नीड टू सेल मल्टीपल स्किल्स. ठीक है जी. तो और ज़्यादातर जो मुझे NIU ने भी एक चीज़ सिखाई कि कुछ स्किल्स ऐसे भी होने चाहिए जो आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके जा सकते हैं. राइट, तो इंजीनियरिंग, आई हैव एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, बट फॉर दैट आई नीड टू हैव एन इंडस्ट्री, आई नीड टू हैव टेक्निकल कंपोनेंट्स टू इट एज वेल. ट्रेनिंग का जो आपका सवाल था सर, वो एक और स्किल था जो मैंने देखा कि आई नीड टू सेल. रोटियों के साथ मैंने छोले भी बांटने शुरू कर दिया. बट एक पिकासो की मुझे एक चीज़ याद आ गई. वो एक दफ़ा बैठे हुए थे पेरिस में, आपके शहर में सर, तो वो एक तस्वीर बना रही थी, उस डूडलिंग ऑन अ पेपर, तो उसको पसंद नहीं आया तो फेंक दिया. तो साथ वाली खातून ने कहा कि आप बड़ा, एंड शी डिडंट नो कि ये पिकासो है, तो उन्होंने कहा कि ये बड़ा खूबसूरत है, इसको मैं ले लूं. उन्होंने कहा जी ले लें, बट इसकी ये कीमत है. उसने कीमत बहुत बड़ी बताई. तो उन्होंने कहा जी आपने तो 5 मिनट लगाया, तो इसकी इतनी बड़ी कीमत क्या है? कहते हैं कि जितने उम्र भर का जो मेरा रियाज था वो तो तुमने नहीं देखा ना, तुमने तो सिर्फ वो मेरी डूडलिंग देखी. मेरी उम्र लगी है यहाँ तक पहुँचते पहुँचते. तो ट्रेनिंग का भी जो सफ़र है सर, मैं बड़ा हारा हूँ लाइफ में. मैंने कई घंटे अपनी ज़िंदगी के इसी कैमरा के सामने बैठ के ट्रेनिंग रिहर्स करता रहा, टोनी रॉबिन्स को देखा, चीज़ों को देखा. तो अब मैं जब ट्रेनिंग्स करता हूँ एट ए गवर्नमेंट लेवल, इंटरनेशनल लेवल, GIZ हो गया, US8 हो गया, तो उसमें मेरी उम्र भर का रियाज है जिसके अब रंग निकले. तो मैं स्टूडेंट्स को सर यही कहूँगा कि कभी ज़िंदगी में ना एक ठेले की चीज़ों पे ना रहना, हमेशा कोई ना कोई ऐसी स्किल ऐड करते जाना जो तुम्हें बेचने के लिए और बिकने के लिए फ़ायदेमंद हो सके मार्केट में. फैंटास्टिक. बिल, बहुत आपने अच्छी बात की. आपने पूरी दुकान सुझानी है एंड जिंदगी इसी की बेसिस पे चलेगी. आप एक ही स्किल पे रिलाई नहीं कर सकते. इनफैक्ट एक क्वेश्चन भी उसी नौयत का आया है कि you've developed a toolkit of yours. How have those tools contributed to your success in your current role and your career roles that you've described in the corporate world? नहीं सर, बहुत अच्छी आपने बात की. इसका एग्जांपल मैं देता हूँ जी कि 8 साल पहले ये
पुलिस वालों ने हमसे पूछा एक्साइज एंड टैक्सेशन में कि जी हमारा एक बहुत बड़ा अलमिया यह है कि जी हमारी बात सड़कों पे कोई नहीं सुनते। तो उन्होंने कहा टेक्नोलॉजी के ऊपर सॉल्यूशंस लेके आते हैं, हम प्रोसेसेस के ऊपर लेके आते हैं, बट असल प्रॉब्लम पीपल का था कि जब आपको एक इंसान रोकता है गाड़ी में, वो सलाम नहीं करता था, वो आपसे प्यार से बात नहीं करता था। तो हमने वो एंगल को चेंज किया और कहा कि नहीं जी, जितने भी एक्साइज एंड टैक्सेशन के ऑफिसर्स हैं, जितने भी पुलिस वाले हैं, जब वो रोकें तो मोहब्बत की जुबान इस्तेमाल करें। तो हमने मोहब्बत से कई तो दैट वाज द फ्रेमवर्क, दैट वाज द टूल किट ऑफ टेलिंग, एंड दैट्स जस्ट एन एग्जांपल कि व्हेन यू एक्चुअली डू मोडालिटीज, व्हेन यू टॉक टू पीपल, इसके डिफरेंट एग्जांपल भी देता हूं। मैं शौकत खानम में उनके वो ट्रेनिंग्स करवाता था, तो हमने ये भी देखा सर्वे करके कि जो डॉक्टर्स, क्योंकि कैंसर एक ऐसी चीज है कि जहाँ पे लाइफ थ्रेटनिंग सिनेरियोज है, राइट, जब डॉक्टर्स प्यार से बात करते हैं ना आपके पेशेंट्स के साथ, तो calmness और serenity एंड वो चीज़ें आ जाती हैं, बिकॉज इट्स लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। सो हमने टूल किट्स बहुत सारे बनाए हैं सर इन टर्म्स ऑफ द माइंडसेट, and that's also the things that we're doing with NIU today as well. कि डॉक्टर राणा साहब ने कहा कि before you actually go into your clinics, have a proper toolkit in place. आप आपकी documentations proper रखें, कौन सी चीज़ों को sign को रखना है। और हमारी फील्ड में क्लिनिकल साइकोलॉजी बार बार ये एम्फेसिस है, जो मैंने अगेन, मैं ये नहीं कि NIU की तारीफ कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में शॉर्ट कोर्सेज किए हैं। NIU बार बार हमें एक चीज सिखा रही है कि कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच ना करना। बल्कि सर इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब हम अपनी एग्जाम्पल्स भी क्लासरूम में शेयर कर रहे होते हैं तो डॉक्टर नुमाना बार बार कहती है पेशेंट का नाम ना लेना, you're not authorized to talk about any patient, ना जनरल बात आप कर लें। अब ये एम्फेसिस इन्फ्यूज करना बेस्ट प्रैक्टिसेस का, दिस इज व्हाट इंस्टीट्यूशंस डू, राइट। तो हम सिर्फ क्रिएट नहीं कर रहे होते, बल्कि इंस्टीट्यूशंस भी हमें ये टूल किट्स करवा रही होती हैं। जी जी, थैंक यू, आई थिंक वेरी वेल आंसर्ड। और वाकई आई थिंक टूल किट के अंदर एक तो वही मल्टीपल टूल्स और एंड नोइंग व्हेन टू यूज द राइट टूल, जैसा आपने अभी एक एग्जांपल लिया कि जी टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसेस एक जगह तक जाते हैं, लेकिन आपकी जो ह्यूमन इंटरेक्शन है, ह्यूमन एलिमेंट है, उसका बहुत बड़ा गोल है, जो कि अक्सर हमें नोट करते हैं कि माशाल्लाह पाकिस्तान में जो प्रोफेशनल एजुकेशन है वो जनरली उसका मेयार बहुत अच्छा है, लेकिन जो एक चीज़ मिसिंग परहैप्स रह जाती है इज जो स्टूडेंट के कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, एनालिटिकल स्किल्स हैं, वो उस लेवल पे डेवलप नहीं हो पाते परहैप्स जो कुछ लेट्स से अच्छी बाहर की यूनिवर्सिटीज ड्रिल डाउन करवा देती हैं। सो जॉब रेडी या प्रोफेशनल रेडी होना स्टूडेंट्स के लिए, दैट समथिंग जो कि NIU बहुत कोशिश करती है, एंड आई एम ग्लैड टू हियर कि आप ये नोट भी कर रहे हैं इन योर एक्सपीरियंस एट NIU. I will wait for more questions. We have a couple of minutes left. मैं in the meantime अगर कोई और सवाल नहीं है तो I can quickly. सालम साहब, एक चीज मैं जरूर आपको, एक रिक्वेस्ट है, वो बताना चाह रहा हूँ, और आप तो हमारा शुक्रिया अदा करें ना। फ्रॉम पाकिस्तान टू सीजन प्रोफेशनल लाइक यू, आई वांट टू थैंक यू, क्योंकि उसकी एक सर वजह यह है, मैं आपको NIU की एक चीज और भी बताया, अगेन ये तारीफों का पुल नहीं है, ये हकीकतों की कहानी है कि पहले दिन जब मैं ओरिएंटेशन में आया, आपने मेरे ख्याल में फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी की वो वाइस चांसलर रखी हुई है, उनका नाम मैं भूल गया, उन्होंने कहा डॉक्टर नजमा नजम, NIU में हम पैसे कमाने नहीं आ रहे, हम जनरेशन को बिल्ड करने आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप ये समझते हैं कि आप इधर आ रहे हैं एंड वी जस्ट हियर टू मेक मनी, नो वी आर नॉट। अगर आपने यहाँ से कुछ नहीं सीखा तो दिस इज एन ओनस ऑन अस, और ये एम्फेसिस बार बार है। ये चीज मुझे किसी जगह पे नहीं मिली, अगेन क्योंकि मैं दाखला ले रहा था 5-6 जगहों पे, मैं सबके ओरिएंटेशंस पे गया, ये कहानी मुझे नहीं मिली। तो आई फील वेरी हैप्पी। वो ईदी वाली बात है कि उसकी माँ ने कहा था कि 2 आने लेके जाना, एक खुद पे खर्च करना, एक किसी पे कर देना। तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स आई थिंक अबाउट फातिमा, एंड आई सैल्यूट यू एंड योर फैमिली एंड द पीपल हियर, इज यू आर डूइंग अ ह्यूज वैल्यू एड and contribution to Pakistan, right? You care about the generation. So अगर आप जैसे लोग ना होते तो शायद ये जो हमारा जो next generation है ना, वो जरूर सफर करती। तो सालम साहब, thank you for helping Pakistan, building Pakistan. थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर दोज काइंड वर्ड्स। और आई होप कि हम आपकी एक्सपेक्टेशंस और जो आप तारीफ कर रहे हैं, हम वाकई उसके
हकदार भी बने और उसको उसके we can do justice to the kind words that you're putting in. ये एक बहुत लंबी रेस है और पाकिस्तान के पास आज टाइम बहुत कम है. अनफॉर्चुनेटली हम बहुत ग्राउंड लूज कर चुके हैं एंड आवर होप इज कि हम हायर एजुकेशन के अंदर एंटर करना भी, ये अक्सर जगहों पे अक्सर हमारी इस तरह की चैट्स होती हैं और जो स्टूडेंट्स आज भी सुन रहे हैं मैं उनको यही कहता हूँ कि जी आप privileged probably 1 or 2% हैं और पाकिस्तान जो कि एंटर कर रहे हैं या थिंक सोच रहे हैं अबाउट हायर एजुकेशन. बहुत सारे लोगों को एक्सेस नहीं है, अगर एक्सेस नहीं है तो दे डोंट हैव द फाइनेंशियल मींस के इसको परसू कर सकें. अंडर ग्रेजुएट डिग्री करना, फिर अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर्स करना, इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम है पीएचडी लॉन्च करने का भी, स्पेशली इन साइकोलॉजी वेरी सून. ऑफ कोर्स रेगुलेटरी बॉडीज अलाउ करेंगी तो हम आगे चलेंगे. बट अगेन थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स. एक क्विक पार्टिंग क्वेश्चन मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा एंड दिस इज समथिंग जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दुनिया में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा साइंसेस हैं, डेटा एनालिटिक्स हैं, उसका एक बहुत बड़ा रोल बनता जा रहा है इन एनी एंड ऑल एरियाज. आपका भी माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस है एजुकेशनली एंड आई एम श्योर आपकी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इन डेटा एनालिसिस. आप क्या सजेस्ट करते हैं हमारे स्टूडेंट्स को कि किस तरह से वो डेटा एनालिटिक्स को ग्रास्प कर सकें और यू नो हाउ, थोड़ा सा नॉट कमिंग फ्रॉम मी बट कमिंग फ्रॉम यू सिटिंग इन द प्रोफेशनल लाइन के हैविंग नॉलेज ऑफ द स्टैटिस्टिक्स एंड ability to work with data sets, numbers need to talk to you. Please as parting words do dispel your words of wisdom on this. Sure, sir. Salem sir, $1 million question, and that's one of the, again, वही ठेले वाला दुकान था. I realized 10 years ago that data is actually the key. Diagnosis जब आप करते हैं ना किसी problem का, you need to do it on substantial databases. एक example मैं अपने भाई का देता हूँ. He's in the US और वो surgeries करता है, invasive surgeries करता है. तो कहता है कि अहमद भाई अब जो है ना हमें पहले मेरे दिमाग से एक बात चलती थी, अब डेटा इतना आ चुका है कि we actually make very better decisions because the data is right there, right? Give you a more practical example from my field, which is excluding healthcare, is running customer experience for one of the largest telecom companies in Pakistan. We have 14 million subscribers. So there's a huge data set that you work with to understand the trends and scenarios. So you're absolutely right. If you have a problem in your industry, you need to have data, and the mindset is how to ask the right questions, how to parse the data, and actually come up with the right suggestive answers. So yes, data set is the key. AI is actually substantially the right solution to better improve your diagnostic skills. Last part उसी psychology में भी सर यही problem है कि जब आपके पास every day different patients आते हैं and there's about 400 different disorders, you shouldn't leave it up to the doctor to diagnose, right? You should also have a supplementary tool in place that you input data कि जी these are the 400 things I've evaluated from the patient, and you can also get facilitation from an AI tool that says मेरे हवाले से he might have these or she might have these 7-8 disorders. Thank you again. I think आपने बिल्कुल सही कहा कि make friends your numbers because they will talk to you. और आजकल इतना ज़्यादा data oriented आपके पास decision making आती है. You can use tools to your advantage, even starting from basic Excel. I think using understanding Excel, how to model your data, how to run macros for basic needs, वो बहुत ज़रूरी I think हो चुका है. I know we are at time, लेकिन एक आखिरी सवाल जो कि बड़ा relevant है शकील साहब ने किया है कि are there any specific programming tools or programming languages that you find particularly useful in your work that combines computer engineering, data analysis, and psychology? Anything that off the top of your head seems to come to mind? Sir, thank you for asking that question. I think tools, unfortunately, are always changing. The thing that's constant, sir, is the mindset, right? Yeah. So tools, sir, आज for an example, आप Tableau इस्तेमाल कर लें, कल Microsoft की tool आ गया है, परसों कोई और चीज आ जाएगी, तो सर आकाश में आपको लॉक कर देता कि ये tool है. मगर इंडस्ट्री इतनी जल्दी से evolution की तरफ जा रही है, जैसा आपने कहा सर कि the road is long but we have less time. So I don't think the tools really matter as long as you know how to use the tools.
right? And why do you want to use the tools? I think that's the key focus. So yes, I can give you 20 tools, but boss, problem ये है कि परसों शायद वो बदल जाए. Very true, very true. और आपने वैसे टैबलो का नाम लिया, मैंने अपने आप को सिखाया, इट्स वेरी यूजर फ्रेंडली. कोई आपको लंबी चौड़ी एसक्यूएल नॉलेज नहीं देना चाहिए. इट्स अ लिटिल बिट अबाउट परहैप्स राइटिंग मैक्रो इन एक्सेल. आप अपने आप को टीच कर सकते हैं, और एटलीस्ट बेसिक डेटा एनालिसिस के लिए आपको जो रिप्रेजेंटेशंस वो करके देता है, दैट्स ग्रेट. बट आई 100% एग्री विद यू कि अगर आपको बेसिक्स समझ आ जाए एक्सक्यूज मी on data modeling, तो आप tools can become your friend and आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं. So अगर रुझान पैदा करें अपने आप के अंदर, तो that'll be क्योंकि बहुत जस्ट लास्ट स्टेटमेंट हमने देखें, पावर बीआई भी वही काम करता है माइक्रोसॉफ्ट का और टैबलो का. बट द क्वेश्चन इजंट के टू लुक एंड मेक विजुअलाइजेशन बेटर. द क्वेश्चन इज हाउ डू यू आंसर क्वेश्चंस. So the tools really are just a supplementary mechanism to answer the questions you want to solve. Very, very true. Thank you, sir. Thank you. Very, very kind. We are at time, Ahmad Saab. हम लेकिन जो हमारा parting question होता है to our guest, that's all the same. कि given you are for the most part addressing prospective students, current students, recently graduated alumni, आपके लिए parting words of wisdom, would you have done anything differently had you been sitting in their position and thinking back? Hindsight is 2020. क्या आप हमें अपने parting words of wisdom? जी सर, आई थिंक कि लाइफ में मैंने जो एक चीज सीखी है कि हमें जो भी मिला ना लाइफ से, दिस इज माय पर्सपेक्टिव, वो अल्लाह की शफकत है, अल्लाह की मेहरबानी है. एंड वी शुड थैंक, जिस तरह आपने भी आई जस्ट टेल द व्यूअर्स कि मैंने 5 मिनट पहले सर से ये कहा करनी पड़ी है, तो सर ने ही मुझे सिखाया कि नहीं अहमद साहब, अल्हम्दुलिल्लाह टुडे इज अ ब्यूटीफुल डे, राइट. हमारा रमजान कितना प्यारा गुजरा. तो आई थिंक ही री-टॉट मी द लेसन दैट आई समटाइम्स फॉरगेट माई सेल्फ is alhamdulillah. We need to thank and we need to be grateful for what we have. So that's what I would tell all of the people who are listening. Alhamdulillah, that one word can change the course of your mindset and practicality. That you just taught me, Salem Saab as well. So thank you for that. Very kind. Thank you so much, Ahmad Saab. I think Baki, living in the present and being thankful and grateful for what we have is something to often we'll celebrate the small wins, celebrate, कहते हैं every hour something great that you did, something that made you happy. That's how you keep on going. It's one day at a time. I know sometimes especially हमारे आज माशरे में रहने में the country is going through turmoil, economically, politically. बहुत सारे Maslow's hierarchy of needs of course impacts us in a lot of ways at the very, very basic level. बहुत मुश्किल है to look beyond, लेकिन हम सब ने कोशिश करनी है. Losing hope, losing heart is not the way to go. So pick yourself up, dust yourself off, and get ready to attack the next day in a good way. With that, Ahmad Saab, I'd like to thank you. NAU की तरफ से हम आपसे बहुत मशकूर हैं. आपने पिछले 45 मिनट हमारे साथ गुजारे. We are internally grateful. And आपने mentorship की जो बात की, हम अपने सारे Fireside Chat participants जो हैं उनको we're going to take you up on your offer, unsolicited terms पे कि we won't send you big groups, but हम कोशिश करेंगे कि प्री सिलेक्टेड कुछ क्यूरेट करके रेलेवेंट लोग आपके पास भेजें, बिकॉज वाकई मेंटरशिप इज अ लॉस्ट आर्ट हियर इन पाकिस्तान. और अगर स्टूडेंट्स को इस तरह के मेंटर्स आपकी तरह से मिल जाएं तो नथिंग बेटर देन इट टू गाइड देम. थैंक यू सर. Thank you, Ahmad Saab. Dr. Anam, thank you for hosting us also for today at Nur International University, and inshallah looking forward to catching up again. Thank you, sir. Assalamu alaikum. My pleasure, sir. Thank you. Thank you, sir.